we are once again back to talk about Moot Memorial. I'm Sneha Arora, presenting from Legal Darshana, and I am a fifth semester student in CLC. Right? So you are very well versed of it. Okay. So आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम एक मूड को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं ओरल आर्ग्यूमेंट्स में. राइट तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ड्रेस कोड. यू हैव टू ड्रेस अप वेरी डिसेंटली. आजकल हमारे ऑनलाइन हियरिंग्स चल रही हैं कोर्ट्स में, तो हम रोज सुनते हैं कि कभी कोई ब्रश कर रहा है, कोई शेव करने बैठ गया एंड किसी ने टाई नहीं लगा रखी. सो दिस इज नॉट हाउ अ कोर्ट शुड ऑपरेट. राइट, हमने कोर्ट्स में जो जजेस हैं उनको हम एक बहुत रिस्पेक्टेबल व्यू से देखते हैं. तो द डेकोरम शुड ऑलवेज बी मेंटेन. दैट इज वाई जब आप एक मूट मेमोरियल को प्रेजेंट करने जाओगे, बिकॉज दिस इज हाउ वी विल इवॉल्व इनटू बेटर लॉयर्स एंड जजेस. राइट, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है ड्रेस कोड का. बॉयज जो हैं दे शुड dress up very decently, like they are wearing a good white shirt which is perfectly ironed. ऐसा ना हो कि वो आयरन ही ना हो रखी हो. like अभी तो सब ऑनलाइन है, बट आप ऑफलाइन में भी जब मूट करने जाओगे तो द ड्रेस कोड इज गोइंग टू बी अ वेरी कैची पॉइंट. उसको देखकर जो है फर्स्ट व्यू आपका बनता है, like how serious you are going to be towards that entire competition or that entire subject. तो आपकी जो ड्रेस है वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए. व्हाइट शर्ट, black pants for boys and black coat and along with a black tie preferably, and please hairstyle should be very decent. कभी बाल आगे आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, वो चीज अच्छी नहीं लगती है. they should be properly gelled up. boys के केस में and girls के केस में they should be tied perfectly or like beautifully, कि वो आपके फेस पे बार बार ना आ रहे हो. they are not blocking the sight basically. right, so you have to dress up in that way. Girls can also wear white kurti along with black jeans and black coat, and also they can wear saris. So this is about the dress code. Then coming on to how we present, हम कैसे present करेंगे. You have always to treat the judges with a mark of respect. आप उन्हें सबसे पहले ग्रीट करेंगे. यू आर गोइंग टू से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर द टाइम ऑफ योर हियरिंग्स. प्रेफरेबली गुड आफ्टरनून, क्योंकि 4-5 बजे इवनिंग होती है, उस टाइम पे तो हियरिंग्स कम ही होती हैं. सो मॉर्निंग और आफ्टरनून. Then you have to ask them that you are seeking the permission to address them. How you are going to address them? Like we say, the petitioner or the respondent, whoever side you are representing, the petitioner seeks the permission of bench to address it as Your Honor or Your Lordship, or if you are presenting a matter of international court, then you have to say Your Excellency. Right? But अच्छा, one more thing I would like to add over here. For example, हाँ अरे, तो for example, अगर दो मैम और एक सर बैठे, so then you have to ask the council seeks permission to collectively address bench as your lordship. Yes, and you have ladyship. Yes, you have तो to. आपको पहले permission if लेनी है. you are mentioning the male judge to be a lordship, then a female judge has to be referred as ladyship. One must keep this in mind, right? हाँ, ladyship, right. हाँ, you can collectively so as बिल्कुल part आप of मीटिंग में घुसते आपको ये बोलना है. address. As you told, collectively address भी कर सकते. हाँ, collectively address, क्योंकि होता क्या है ना, अगर मेल फीमेल्स अगर दोनों हैं, then in that case you have to ask for the permission. भाई सारे अगर मेल है तो लॉर्डशिप हो जाता है, नहीं तो लेडीशिप हो जाता है. अगर दोनों हैं, then you have to ask the council seeks permission to collectively address bench as your lordship. तो फिर जो भी आपके आगे आर्ग्यूमेंट्स आएंगे या फिर जो भी वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप उनको फिर your lordship करके ही बुलाएंगे. Also जैसे ही आप मीट में आते हैं, सबसे पहले ग्रीट करें. Your Honor use कर लो for a safer. अब तो सर भी यूज कर सकते हैं, रिसेंटली देखा है तो. A lot of judges had said आप हमें सर बोलो. कर लो. हाँ, exactly. हाँ, सर बोल लो, बट ठीक है. तो बीइंग ऑन अ सेफर साइड आप ये बोलें, और जैसे ही आपकी एंट्री होती है स्क्रीन पे, तो देन यू हैव टू आस्क कि मे इट प्लीज द कोड. यस, हाँ, मे इट प्लीज द कोड. द काउंसिल सीक्स परमिशन, पहले तो एड्रेस का, देन द काउंसिल, फिर जैसे वो बोलेंगे स्टार्ट कीजिए, फिर आपको बोलना है मच ऑब्लाइज्ड, देन आपको वापस से परमिशन लेनी है. द काउंसिल सीक्स परमिशन टू स्टार्ट विद सबमिशन ऑफ फैक्ट्स. always introduce yourself. फिर इशू बोलना है द काउंसिल सीक्स, so on so on.
अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है. जब आप परमिशन ले लोगे हम्म, and when they grant that yes you can address as your honor etc, then you have to say much obliged your honor, and then you have to introduce yourself. May it please the court that I am XYZ appearing on behalf of the petitioner in the case of X versus Y. This is the introductory line जहाँ पे आप अपने बारे में अपना नाम बताओगे, आप किसकी साइड से अपीयर कर रहे हो वो बताओगे, एंड आप केस का नाम भी बताओगे. ठीक है. देन when you are done with this, then you are going to ask that sir or your honor, the council seeks permission to proceed with the facts of the case. Usually, moot court competitions come with a time limit. 20 minutes, 15 minutes, and आज जैसे हम लोगों ने moot memorial दिया, presentation, oral arguments दिया, उसमें भी we had a time slot of 10 minutes. So if the bench is well versed with the fact, अगर अपील जा रही है या कुछ भी हो रहा है, तो कभी कभी होता है कि केसेस में जजेस को पता होता है फैक्ट्स क्या है या जो भी है, तो यू कैन ऑलवेज से, अगर आपको टाइम भी सेव करना है, यू कैन ऑलवेज से इफ माय लॉर्डशिप इज वेल वर्स्ड विद द फैक्ट्स ऑफ दिस केस, कैन आई प्रोसीड टू स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. कि फैक्ट्स अगर आपको पता है तो क्या मैं स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन तक पे आके आपको वो बता सकता हूँ. अब आपको उसमें ज्यूरिसडिक्शन साइट करनी है, that it is humbly submitted before the court. बट इसलिए भी मत बोलना ऐसा मत बोलना सामने से. नहीं बोल सकते अपने आप सामने से पहले से मत बोल देना कि आज ही आपका फर्स्ट आपका वो है. ओके यस यस. अरे क्यों बोल रहे, वैसे भी टाइम है इनिशियली. नो देयर इज अ थिंग, Time अगर का तो रहता ही है. पेटिशनर, अगर आप पेटिशनर हो तो आप फैक्ट्स बता दो, बट अगर आप रिस्पोंडेंट की साइड शो कर रहे हो तो आप ये चीज बोल सकते हो दैट if the bench is well versed with the facts of the case presented from petitioner's side, we would like to proceed with the statement of jurisdiction. Respondent side can always say that, क्योंकि दोबारा facts थोड़ी ना बताएंगे, right? Then बट जजेस भी सामने से बोल देते हैं. Even if you ask for the permission कि Yes. वो खुद बोल देंगे no the council please move to the issues at yes jurisdiction. absolutely वो yes, खुद भी बोल देते हैं. absolutely yes. उसके बाद we ठीक have है. to go with statement of jurisdiction. हम statement of jurisdiction narrate करेंगे just how we have written it. पहले हम ये बताएंगे कि it is humbly submitted before XYZ court, and then we will quote the entire provision. अगर आप CPC के provision से जा रहे हो तो CPC को आपके provision को quote करोगे. अगर आपने criminal appeal डाली है तो आप CRPC के provision quote करोगे. आपने writ petition high court में डाली है 226 article quote करोगे. 32 से डाली है तो 32 कोट करोगे. अगर आप SLP से जा रहे हो तो आप 136 कोट करोगे. You are बेसिकली always, जो भी आपने मतलब मेमो में लिखा है आपको वही की वही बोलना है. yes exactly, है you ना? have to say the entire thing you have written in हाँ. statement of jurisdiction, right? So next when you say the statement of jurisdiction, you are going to proceed with the issues as I have already mentioned in the prior video कि issues maximum 2 या 3 रखें, और वो रखें जो बहुत रेलेवेंट हैं, जो कि आपका केस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपको वीक नहीं कर रहे हैं. ठीक है. और अगर वीक कर भी रहे हैं तो आपने उन्हें इस तरह प्रेजेंट कर दिया है that the case could tilt in your favor, then you can proceed with them. 3 से ज्यादा issues, I think 3 are more than enough. So you are going to present the issues. Issues में आप कभी भी summary of arguments नहीं बोलेंगे, आप issue बोलेंगे और आप उसका content कोर्ट के आगे present जो करेंगे वो आप करेंगे arguments advanced में से या detailed pleadings में से. और हर बात जो आप कह रहे हो, इट इज वेरी गुड इफ अगर आप उसको बोलते वक्त आप कोई केस साइट करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के केसेस प्रेसिडेंट की तरह वर्क करते हैं. तो इट इज ऑलवेज गुड एंड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप इस तरह के केसेस को साइट करो ताकि आपका पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपकी साइड स्ट्रॉन्ग हो. सुप्रीम कोर्ट के पास अगर केस गया है तो दे शुड कंसीडर कि हाँ प्रीवियस बेंच ही वाज द लर्नड जज, उन्होंने ये बोला है तो मे बी उन्होंने सही बोला हो, हम इस चीज पे कंसीडर कर सकते हैं. सो इट इज ऑलवेज गुड टू प्रोड्यूस द डिसीजन ऑफ कोर्ट. अगर आप हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हो केस तो आप हाई कोर्ट के केसेस भी लिखो, सुप्रीम कोर्ट के भी लिखो, ताकि आपके आर्ग्यूमेंट में फोर्स आए, आपके आर्ग्यूमेंट में एक push आए to tilt the case in your favor. And always cite some law recommendation, law commission reports जो recommendations committee देती है उनको cite करो, जो अगर उस चीज से related
लंदन में, अमेरिका में या कहीं पे कुछ रिसेंट इम्प्रूवमेंट की गई है, तो आप उसे भी साइट करो। प्लीज डू साइट देम ऑल्सो, बिकॉज हम बाकी कंट्रीज से भी तो compete करते हैं ना कि वो इस चीज में क्या क्या कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी साइट करो। यूनाइटेड नेशंस उस पर्टिकुलर इशू पे क्या बोलता है, ड्रग्स पे यूनाइटेड नेशन क्या बोलता है, तो आप उसे भी साइट करो। मेक योर आर्ग्यूमेंट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रेजेंट इट वंडरफुली इन फ्रंट ऑफ द जजेस, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट। Yes, part. अच्छा, one more thing I would like to add over here. What are the potential questions that the judge can ask? So, firstly, for Okay. example, जो भी articles involved है, for example, अगर आप लोगों की mood problem मैंने पढ़ी नहीं है, but hypothetically speaking कि contract ही है, suppose contract का कोई section 18 है, तो आपको section 18 पता होना चाहिए, उसके आस-पास के sections की knowledge होनी चाहिए, वो क्या बोलता है, उसका interpretation क्या है, पहली चीज़ तो वो। Second thing, जो भी आप लोग case cite करेंगे, उस case के facts और उसमें क्या हुआ था वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि द जज माइट आस्क कि अच्छा आपने ये केस साइट करा है, इस केस की डिटेल्स दे दीजिए, तो वो ये भी पूछ लेते हैं। तो जोश में आके ये नहीं कि 20-30 केस लगा दिए, जो भी आप चीज लगा रहे हैं उसके बारे में आपको इन एंड आउट पता होना ही होना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो डू कीप दैट थिंग इन माइंड कि ये चीजें पूछी जा सकती है। एंसिलरी प्रोविजंस जो कि उस लॉ के आसपास लॉ से डील करते हैं, एंड सेकेंडली जो भी आप केसेस साइट कर रहे हैं, जो भी आप रिपोर्ट साइट कर रहे हैं, उसमें क्या बोला वो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। Right, very right. Okay. राइट, Questions किस तरह के पूछे जाते Yeah. हैं? But I have so experience. that would be enough. Yes. 5 more minutes. Questions में it goes like कि कभी-कभी question statement of हाँ jurisdiction से jurisdiction से बहुत important question आता है। आपसे कोर्ट कह देंगे, हाँ बेंच देगा कि क्यों आप हमारे Right, पास क्यों आए हो, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, why haven't you gone there, आप सीधा हमारे पास SLP लेके आ गए हो या रिट लेके आ गए हो। क्योंकि if you read and if you know already, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा रिट जुरिस्डिक्शन जो दी है, जो एक्सरसाइज करने की पावर दी है, वो हाई कोर्ट्स को दी है। तो कुछ भी होता है लोग जाके रिट लगा देते हैं, ठीक है। So that is why an evident question is कि why are you coming under Article 226 और why are you coming under this, why not that? क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारे कोर्ट्स हैं, कमर्शियल कोर्ट्स हैं, हमारे पास SC/ST कोर्ट्स हैं, हमारे पास फैमिली कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट्स हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। Then why are you making or filing a writ petition directly before a high court or a supreme court? What are you going to say that? क्योंकि अब since आप petitioner हो, तो आपसे सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि यू आर फॉरवर्डिंग अ पिटिशन, नॉट द रिस्पोंडेंट। तो आपको इस चीज में ये देना है कि सर, अब रिट पिटिशन हम क्यों लगाते हैं, किसी बॉडी ने जो चीज कर दी है उसके ऑर्डर को क्वैश कराने के लिए, या किसी और बॉडी ने, मान लो म्यूनिसिपैलिटी ने कुछ करवाने के लिए, यू गो एंड फाइल रिट पिटिशन। तो आप बोलोगे कि सर, ताकि लिटिगेशन की पेंडेंसी ज्यादा ना हो जाए, कोर्ट पे बर्डन ना आ जाए, प्रोसीडिंग्स डिले ना हो जाए, इसीलिए हमने रिट पिटिशन लगाई है। हमारा मैटर ऑलरेडी DDA में चल रहा था, या JDA में चल रहा था, या यूपी कंसोलिडेशन ऑफिस में चल रहा था, लेकिन अब अगर हम उस मैटर के लिए फैमिली कोर्ट जाते या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते, तो हम दोबारा से केस फाइल करते, इसलिए हमने सीधा रिट लगा दी। तो दैट एंड ऑल्सो सर, आपकी जुरिस्डिक्शन है और हर सिटीजन का ये राइट है कि वो आ सकता है, तो इसीलिए हम इस कोर्ट में आए हैं। You have to be very strong while presenting the statement of jurisdiction, क्योंकि यहाँ पे जो जज है वो आपसे क्वेश्चन जरूर करेगा, right? And then the court is going to ask you about the issues you are presenting, कि वो आपको कितने क्लियर हैं, कितने नहीं हैं। They are going to twist you around the relief, कि अगर हम आपको ये रिलीफ ना देके ये दे दें, अगर मैं आपको अभी डिसीजन ना दूं और मैं इस मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने भेज दूं, तो आपको चलेगा? The court is going to ask you this. Then you have to, depending on the case, आपको इस चीज के साथ रेडी रहना है कि कोर्ट आपको उस चीज में क्या क्या डिसीजन दे सकता है, और आप उसके लिए रेडी हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड, राइट? सो दीज वर फ्यू प्रोबेबल क्वेश्चंस। ऑल्सो एनेक्चर्स ध्यान से देखना, इन केस आपकी मेमो के अंदर यस, इफ यू इन केस फॉर एग्जांपल कोई एनेक्चर्स या कोई एग्रीमेंट टर्म्स वगैरह देख रखी हैं, यस, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट ऑफ तो आप प्रॉपर्टी, ये भी डालना कि आप ऑलरेडी से- एग्रीमेंट में ये मेंशन था। हाँ, राइट, तो आप सेल डीड लगा सकते हो। मेमो को अच्छे से पढ़ना, अपनी Yes. मूड प्रॉब्लम को 10 से 15 बार पढ़ना। यस, एब्सोल्युटली।
प्रॉब्लम जो भी है पढ़ोगे, सॉल्यूशन ठीक है, वैसे उसी बाकी इतना कोई लोड वाली बात नहीं है, राइट उसी में से मिल जाएगा। राइट सो आई थिंक ठीक वी है, आर बाकी डन फॉर टुडे। सैंपल मेमोज वगैरह हम लोग भेज देंगे ग्रुप पे। यस हाँ, वी आर डन फॉर टुडे। एंड तो बस आल्सो यही है। अगेन टू सम अप, फर्स्टली रीड करना। हाँ स्नेहा, जस्ट लेट मी सम अप फटाफट कि कैसे क्या बेसिक कोड फॉलो करने हैं। फर्स्टली मेड प्लीज द कोड, आप ग्रीट करें। उसके बाद अगर दो फीमेल या दो मेल अगर ऐसे बैठे हुए हैं, देन टेक द परमिशन कि द काउंसिल यानी आप टेक्स द परमिशन टू कलेक्टिवली एड्रेस द बेंच एज योर लॉर्डशिप। एक आपका ये हो गया, वो बोलेंगे अग्रीड, देन यू हैव टू से मच ऑब्लाइज्ड योर लॉर्डशिप। फिर आपको वापस से पूछना है, नाउ द काउंसिल सीक्स परमिशन टू स्टार्ट द सबमिशन ऑफ फैक्ट्स, देन दे विल से कि हाँ यू मे प्रोसीड, देन यू हैव टू से मच ऑब्लाइज्ड योर लॉर्डशिप। फिर आप फैक्ट्स बताएंगे, आपने फैक्ट्स बता दिया, फिर आप पूछेंगे इफ the council if your lordship don't have any queries about it, the council seeks permission to move on with issues। तो आपको ये करना है, जो भी आपका इंडेक्स दे रखा था मेमो के अंदर, आपको उसी वे में प्रोसीड करना है और हर बार परमिशन लेते रहना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। लास्ट में प्रेयर जरूर रिसाइट करके आना। दैट्स ऑल। यस और आई थिंक वी विल सबमिट अप तो टुडे। थोड़ा थोड़ी और कुछ नहीं नथिंग, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग इट राइट। So Parth is here from ठीक है, Vakalatu View. चलो जी। I was here from Legal Darshan, and we are always here if you need हाँ। any kind of assistance. And do keep following both the channels for much more. Yeah, and please check her channel. Yeah. Yeah. Thank you everyone. हाँ, प्लीज फॉलो अवर चैनल, एंड जो भी सैंपल मेमोरियल्स थे वो हम दे देंगे। या थैंक यू स्नेहा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you Parth for having me here, and I think we'll call it a day. Thank you.